namaste and a very enthusiastic morning to everyone. Today, I extend my warm welcome to everyone present here for our South Indian Food Fest celebration and the 4th session of Gyan Board. Today, on this occasion, we have called a special guest who was kind enough to accept our invitation and come over here despite having a busy schedule. Our today's guest has experience of over 25 years in accounts, finance, commercial and corporate affairs. Sir, your professional qualification include MCom and LLB from Vikram University, CAIIB from the Indian Institute of Bankers, India, Mumbai, and AICWA from the Institute of Cost and Works Accounts, Calcutta. So, give a round of applause to Mr. Krishna Gopal Mantri. Sir has been also associated with the Man Group of Industries over years and held several positions of responsibilities with it at Dubai, UK, and India. Sir is not just a man with immense knowledge, but also inclination towards reading books and communicate knowledge on vocational training. Now, I would like to call our respected chairman to felicitate Mr. Krishna Gopal Mantri. Now, I would like to call our beloved principal lady to felicitate our vice chairman, Mr. Vijay Kole, sir. Sir, I am very honored to speak about you and your accomplishments. And on the behalf of school, we are very lucky to have you at our 4th Gyan Board session. Everyone will seek a little guidance from your thoughts, and I am delighted to hear that you are today going to talk about the Sri Bhagavad Gita that embodies its solution to all problems. Now, without a further delay, I would like to call Mr. Krishna Gopal Mantri sir on the stage and share their words of wisdom. Give a big round of applause. स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरी ओर से जय श्री कृष्णा। आदरणीय चेयरमैन सर, प्रिंसिपल मैम, टीचर्स, पेरेंट्स एंड लवली स्टूडेंट्स, I am really obliged and thankful to the management and principal ma'am for providing me this opportunity to interact with a wonderful audience like you. I am really obliged. In fact, it's a barter transaction between both of us. I'll be sharing some of my experiences and I'll be getting from you a huge amount of energy, because all youth are full of energy and vigor. Today, I am going to share my thoughts on Bhagavad Gita. Starting from Arjun till now, all of us are students of Bhagavad Gita. No one claims that he is an expert in Bhagavad Gita or he knows everything in Bhagavad Gita. As all of you know, that Bhagavad Gita is probably the only scripture in the world on which maximum research has been done. दुनिया भर के विद्वानों ने भगवत गीता पर रिसर्च की है, अपनी टीकाएं लिखी है, देश के राजनेताओं ने लिखी है. So it's one of the most wonderful scripture, and is rightly said by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji that it's the best gift India has offered to the entire world. There are many scriptures, but Bhagavad Gita has it's a knowledge of it's an ocean of knowledge and wisdom. I wish that in Indian schools and colleges we teach management lessons through our scriptures. Unfortunately, that's not the case. Whereas all these scriptures, be it Mahabharata, be it Bhagavad Gita, be it Puran, or even Panchatantra and Jatak Katha, can teach you wonderful lessons of management. Before I start my talk on Bhagavad Gita, there are two very important characters in mythology. One is Arjun and another is Hanumanji. Hanumanji and Arjun both are
devotees of Lord Krishna and Lord Ram respectively. What is the difference between these two characters? It's very interesting. As teachers and students, all of you know that हम लोग जब भी किसी स्टूडेंट को कोई काम बताते हैं, there are three kind of students we find, or the person in our life we find. One who is not capable of doing something, and we don't assign the task to them. We try to improve their knowledge, their wisdom, their way of working. And the other two types are the one who knows, but he has a lot of excuses to offer to perform a particular task. So Arjun is the person who has a lot of excuses to offer before venturing into the war. He knows how to do it, but वो काफी बहाने बनाता है या आर्ग्यूमेंट्स देता है या अपनी तरफ से सफाई देता है कि मुझे क्यों नहीं लड़ना चाहिए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, all those things. At the same time, we have another character, Hanuman. He is a go-getter, no excuses offered. Task assigned, the next sentence you hear from him is, it is done. So, in our actual life, we find both these kind of characters, the one who need to be awakened and the other one who is already, ready to perform. Now, the whole Bhagavad Gita is a dialogue between two very important personalities, Lord Krishna and Arjun, and that dialogue took place in a war. In a war-like situation, in a crisis-like situation, a dialogue like this with full composure as a rare event. So first thing what we learn from this scripture is that the quality of communication. How both of them communicated with each other in the 700 verses of this Bhagavad Gita. Now, I'll take it from here, one by one. The next, please. Everything starts with why. See, all of you must learn that our life starts with why. आपका जितना बड़ा why होगा, उतना बड़ा आपकी progress होगी. See, Mahatma Gandhi was thrown off the train. He had a question, why? Why I am thrown off the train? And then this why analysis led to the independence movement. Gautam Buddha, Mahavir, they asked themselves why there is so much sorrow and pain in life. And their why finally culminated into their becoming Tirthankar or अवतार जिसे बोलेंगे हम. तो ये why आपका जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा आपका achievement होगा. Never hesitate in asking why. In the entire Mahabharata Yuddha, nobody asked any question to anyone. Everybody was prepared to fight the war. And we must all, as a humanity as a whole, we must all be thankful to Arjun, who actually asked so many questions about life on behalf of all of us. And those questions are answered by him. So why is a very important aspect of our life, and we must not hesitate in asking all those things. This is how our journey starts. जो आपका प्रोग्राम का नाम है ज्ञान बोध, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आई ट्राई टू डिजाइन इट विद ज्ञान बोध. जब मैंने इसका मतलब समझने की कोशिश की कि ज्ञान और बोध, हम हमारी जर्नी शुरू होती है अज्ञान से, इग्नोरेंस. ऑल ऑफ वी स्टार्ट विद इग्नोरेंस. Ignorance, then you start probing, and the science come into picture. Science and knowledge, these are two different things. So actually, when an ignorant person probes, he leads to science, and then when science asks questions, that discovery takes place. That discovery is nothing but culmination of knowledge. Now, विज्ञान और ज्ञान के बीच की जो यात्रा है, वो ज्ञान यज्ञ है. और भगवद गीता के आखिरी अध्याय में 70th श्लोक में ज्ञान यज्ञ के बारे में चर्चा की गई है कि जो भी व्यक्ति इस स्क्रिप्चर के बारे में, इस ज्ञान के बारे में अपने मित्रों से, अपने परिवार से या अपने आसपास वालों से बातचीत करेगा, तो मैं गीता ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा. इट मीन्स व्हाट लॉर्ड वांटेड टू से कि ये जो डिस्कोर्स है, जो हम बात कर रहे हैं आपस में, ये ज्ञान यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ से आप ज्ञान बोध तक पहुंचते हैं. तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आज के इस ज्ञान यज्ञ से हम ज्ञान बोध की यात्रा पूरी करेंगे. और ये जो ज्ञान बोध है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. इसको जब आप दो टुकड़े करते हैं, ज्ञान और बोध, तो दोनों का मतलब ज्ञान है. बोध मतलब भी ज्ञान है और ज्ञान का मतलब भी ज्ञान है. ये दो बार क्यों आया? तो फिर मैंने इसमें सोचा इसमें कि द वन हु नोज एंड ही नोज दैट ही नोज.
So, knowing that you know, that is Jnanabodh. And the one who not knows and knows that he not knows is the most humble person. He needs guidance, he needs to be taught. So, Jnanabodh से मुझे एक ये thought मिला कि I must share with you. Now, I spoke to the program coordinator अपूर्वा जी और नंदिनी जी. I told that कि ये young students का program है and I must avoid to talk about spirituality a lot. ये spiritual subject और हम अध्यात्म की गड़ी और गहरी गहरी बातें करेंगे तो शायद जीवन में आपको उतना मजा भी नहीं आएगा और आनंद भी नहीं ले पाएंगे और काम भी नहीं आएगी. I thought let me take you through the entire journey of Bhagavad Gita, how it travels and how it transforms your life. So first is monkey. All of us have monkey mind. Monkey mind means a wavering mind, chattering mind, and this journey starts from monkey mind. You remove the K, and that becomes money. So as a student, you need to learn the vital aspects of materialism. I mean, मैं आपको spirituality ले जाना नहीं चाहता हूँ. We will talk only about material success in life. How Bhagavad Gita can help you. So the moment you remove K, it becomes money. This K represents knowledge. K for knowledge. And this K for knowledge, when in the middle part of your life, it will relate it to material progress. That is money. And another part, when later part of your life, you may have monk life, where you have spiritual knowledge. So Bhagavad Gita takes you from monkey to money or materialism to spiritual journey. Next. Now it's very interesting. We all know that we remember Bhagavad Gita because it's just like a mother for us. So we call it a religious text and all that. But frankly speaking, Bhagavad Gita is not at all a religious text. ये इसका हिंदू धर्म. हमने अभी आज देखा कितना सुंदर डांस हुआ, ऑर्केस्ट्रा हुआ, म्यूजिक हुआ. ये सब मन को बहुत अच्छा लगा. क्यों? Because everything was in rhythm, well choreographed, well anchored. So you have life which is well anchored. There will be a lot of music and dance. If the life is not well anchored, there is going to be a lot of noise and chatter. So Bhagavad Gita is the scripture myths. So it touches almost every student in this hall. Next please. I'll take only 2 minutes for this. Bhagavad Gita is a song of Lord. ये भगवान का गीत है. Song of Lord. Who is the Lord? Now we call Lord is Krishna. भगवद गीता में जगह जगह भगवान कृष्ण ने एक शब्द का इस्तेमाल किया. I. That I is not the physical form of Bhagavan Krishna. That is universal consciousness. Whenever Lord Krishna is talking as a universal consciousness. मेरी शरण में आ. मेरी शरण में आने का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल 2 हाथ और 2 पांव वाले भगवान कृष्ण की शरण में आ. मेरी शरण में आ मीन्स यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, कॉस्मिक एनर्जी आपको बुलाती है. सो यू हैव टू सिंक्रोनाइज ऑल योर एक्ट्स एंड डीड्स विथ कॉस्मिक इंटेलिजेंस, कॉस्मिक एनर्जी एंड कॉस्मिक रिदम. यू सी द एंटायर यूनिवर्स वर्क्स इन इक्विलिब्रियम. दुनिया इक्विलिब्रियम में है. हमने अभी एक बहुत बड़ी बात देखी डांस में, तांडव नृत्य. प्रॉब्ली दुनिया में कहीं ऐसा कोई नृत्य नहीं होगा जो तांडव नृत्य हो. तांडव भी एक नृत्य हो सकता है. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द यूनिवर्स टीचेस अस. एंड देन हु इज कृष्णा? द सॉन्ग ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. एज आई टोल्ड यू, कृष्णा इज नॉट आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन. ऑफ कोर्स इट हैज कम टू हिम. आप किसी भी स्क्रिप्चर में जाएंगे, चाहे इस्लाम हो, चाहे गौतम बुद्ध की वाणी हो, चाहे महावीर हो, चाहे ईसा मसीह हो, ये सब जितनों ने भी बोला है, जो कुछ बताया है, दिस ऑल यूनिवर्सल कॉस्मिक और कॉन्शियस माइंड की बातचीत है. उसको हम बोलते हैं, अगर उर्दू में बोलेंगे तो उसको बोलेंगे खुदाई नूर है. तो ये खुदाई नूर जब उतरता है तो ये वाणी प्रकट होती है. इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के आगे किसी अध्याय में, शायद शांति पर्व में या किसी में, कहा है कि यदि मुझसे फिर से कहा जाए कि आप भगवद गीता बोलिए तो मैं बोल नहीं पाऊंगा. बिकॉज द स्क्रिप्चर वॉज नरेटेड बाय नॉट द पर्सन, फिजिकल पर्सन, रादर देन इट वॉज ए कॉस्मिक
consciousness, inner consciousness. Please, next one. Now you take who is Arjuna and who is Krishna. This is very interesting. If I say I am Arjuna, I am Krishna, you can say you are Arjuna, you are Krishna. You are absolutely right. There is nothing wrong in it. भगवान कृष्ण ने अपने विभूति योग में साफ बोला है कि पांडवों में धनंजय मैं हूं और वासुदेव पुत्र कृष्ण भी मैं हूं. इसका मतलब यह है कि ऑल ऑफ अस आर नथिंग बट एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल वननेस. वी आर पार्ट ऑफ वन बिग मशीन. सो हम ये पूरी दुनिया जो है ना, एक पूरी मशीन की तरह है. हम इसमें केवल एक इनसिग्निफिकेंट पार्ट है. एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली we are everything. So entire universe resides in us and we reside in the universe. Next please. So all these three put together, we started with Song of Lord and finally it became Bhagavad Gita, Song of Life. So I request all of you, I especially young students, because होता यह है कि हमारा एक पिछले 70-80 साल का जो एक माहौल चला है और 400-500 साल की 1000 साल की गुलामी में हमने एक गलत बात सीखी है. वो ये है कि हमारी हर चीज हमें खराब लगने लग गई है. हम हमारे उपनिषदों का, पुराणों का, हमारे इतिहासकारों का, हम सबका मजाक उड़ाते हैं. जबकि ये सत्य ये है कि यदि आप भगवत गीता को अपने जीवन में उतारें तो इट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. दिस इज आई प्रॉमिस ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा टू ऑल ऑफ यू दैट यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. So this transformation is possible. Now how do you do that? Well, as we move forward, I'll tell you what is to be done for this. Bhagavad Gita, as we all know, but it is a dialogue between a student and a teacher, a seeker and a counselor, a conscious mind and subconscious mind. I would dwell on third line. Third line is very important. What is a counselor actually? What is a mentor or a counselor? Mentor और counselor कोई भी हो सकता है. आपका बेटा भी आपका काउंसलर हो सकता है, आपके पिता आपके काउंसलर हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर काउंसलर हो सकते हैं, आपके टीचर काउंसलर हो सकते हैं. कोई भी व्यक्ति जो आपको दुविधा से निकाले, जब आपके सामने सवाल हो, प्रश्न हो, उसको निकाले, वो काउंसलर हो सकता है. और जो मेरा प्रोफेशन मैंने लिखा है, ह्यूमन पोटेंशियल काउंसलर. व्हाट इज दिस पोटेंशियल काउंसलर? हनुमान जी को ये पता नहीं था कि वो उड़ सकते हैं. नाउ हु टोल्ड हिम? जामवंत जी ने बताया कि तुम उड़ सकते हो, इस समुद्र को पार कर सकते हो, तुम्हारी शक्तियां अनंत है. मतलब काउंसलर टोल्ड हिम दैट यू कैन डू दैट. सिमिलरली हियर कृष्णा आल्सो वर्क्ड एज अ काउंसलर. ही गाइडेड अर्जुन फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ डिप्रेशन. नाउ यू कैन बी अ काउंसलर ऑफ योरसेल्फ. थर्ड लाइन पे तेरा ध्यान देंगे. इट्स अ कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड. इस बात पे काफी विवाद है कि वास्तव में ये युद्ध हुआ था, नहीं हुआ था, या ये केवल एक ऐसा स्क्रिप्चर है जिसके माध्यम से व्यक्ति को अपनी इनर पोटेंशियल को समझने का मौका मिलता है. ये सब डिबेट में हम नहीं जाएंगे. हम केवल ये जानना चाहेंगे कि अगर आप साइकोलॉजी को समझेंगे तो माइंड के कई लेवल्स होते हैं. एक कॉन्शियस माइंड जो पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्ट करता है, एक सबकॉन्शियस माइंड जो उसके नीचे होता है, और एक अनकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस माइंड होता है. तो यदि आपके पास कोई काउंसलर नहीं है, एंड इफ यू डेवलप अ हैबिट ऑफ सेल्फ टॉक, यदि आप 5 मिनट रात को सोने से पहले और 5 मिनट सुबह उठने से पहले, उठने के बाद, इफ यू डेवलप अ हैबिट ऑफ सेल्फ टॉक, योर सबकॉन्शियस माइंड will guide you what to do and what not to do. The subconscious mind residing in each one of you and each one of us is nothing but Krishna, our own Krishna. So try to connect with your subconscious mind. It is answer for everything. ये subconscious mind जो है ना, ये actually आपकी बॉडी में मोबाइल के सिम की तरह है, उसमें सारे डेटा है. So but the point is again, अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि मैं तुम्हारा साथ आऊंगा लेकिन लड़ूंगा नहीं, हथियार नहीं उठाऊंगा, आई वर्क ओनली एज ए सारथी, ये सबकॉन्शियस माइंड भी है ना, इसका प्रॉब्लम यही है. ये आपको अपनी ओर से कोई राय देने वाला नहीं है. यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट द मोमेंट यू कनेक्ट विद योर सबकॉन्शियस माइंड एंड आस्क योर क्वेश्चन, पुट फॉरवर्ड योर प्रॉब्लम्स, यू विल गेट द आंसर. जिसको हम कई बार बोलते हैं गट फील. हमें गट फील हो, ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए. तो वो गट फील जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आती है. इफ यू कनेक्ट देन प्रोबेबली यू विल गेट वेरी एप्ट गाइडेंस. आज का हमारा जो मैंने मैम को और कोऑर्डिनेटर्स को बताया था कि आज हम केवल 16th चैप्टर पे बात करेंगे. 18 चैप्टर में हम ज्यादा नहीं जाएंगे. तो भगवत गीता को आप 500 साल से लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, 50 साल से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ. ये इतनी आसानी से समझ में आने वाली बात नहीं है.
तो हम आज केवल चैप्टर 16 पे फोकस करेंगे और चैप्टर 16 पे मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि इंटरेक्टिव क्लास हो, स्टूडेंट्स मुझे पूछे, टीचर्स मुझे पूछे, एंड आई ट्राई टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग, आई एम अ स्टूडेंट, सो आई मे नॉट बी हैविंग आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन। हो सकता है मेरे पास जवाब नहीं हो सकता है जैसा आप लोग टीचर्स को गोलमाल जवाब देते हैं, मैं भी आपको गोलमाल जवाब देने की कोशिश करूं, या मैं आपको बोल दूं शायद मुझे नहीं मालूम है, बट आई विल ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस ऑन चैप्टर 16। चैप्टर 16 की थोड़ी सी भूमिका बना देता हूं, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। चैप्टर 16 में यह बताया गया है कि पूरी दुनिया के अंदर लोग दो तरह के होते हैं, दो से तीसरी तरह के लोग नहीं होते हैं, देवी संपदा और आसुरी संपदा, यानी डिवाइन प्रॉपर्टीज एंड डोमिनिक प्रॉपर्टीज, ये दो तरह के लोग होते हैं। तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि ये सबसे एप्ट चैप्टर है जिसमें मुझे बात करना चाहिए कि आपका पूरा फोकस पूरी लाइफ में, स्पेशली अभी स्टूडेंट लाइफ में, इस बात पे होना चाहिए कि हाउ यू डू माइग्रेशन फ्रॉम डेमोनिक प्रॉपर्टीज टू डिवाइन प्रॉपर्टीज। कैसे हम हमारे स्वभाव की खामियों को दूर करके वैल्यू माइग्रेशन जिसे हम बोलेंगे, धीरे धीरे हम वैल्यू माइग्रेट करते हुए देवी संपदाओं को प्राप्त करें। अब यहां पे प्रश्न खड़ा होता है कि देवी संपदाएं बहुत सारी बताई गई है, 26 प्रकार की देवी संपदा है और आसुरी संपदा में केवल 5 या 6 है। तो ये 26 अगर देवी संपदा हम में सब में आ जाए तो हम तो सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, वो कोई होता नहीं है। तो हमें करना क्या चाहिए और कैसे करना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इन बिकमिंग टू मच आइडियलिस्टिक। व्हाट कैन वी डू एंड व्हाट कैन वी अचीव इन प्रैक्टिकल लाइफ। सो दिस 26 डिवाइन प्रॉपर्टीज, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप केवल कोई भी एक प्रॉपर्टी को पकड़ें और उस एक प्रॉपर्टी पर वर्क करें। नाउ व्हाट शुड बी दैट प्रॉपर्टी? दैट प्रॉपर्टी कैन बी योर SWOT analysis. What are your strengths? What are your weaknesses? And you want to improve those weaknesses or you further strengthen your strengths, you find out. So each one of you will have a different strength and weakness. So there cannot be a tailor-made answer for everyone. मान लीजिए आपको भय लगता है, तो fearlessness is the trait. नंबर 1 उसके अंदर कुछ लिखा है, तो अभय। अगर आप fearless हैं, अगर आपने बहुत भय लगता है, तो you should try to become fearlessness. तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये खाली लेक्चर से नहीं आएगी, इसको डेवलप कैसे करना, लाना कैसे लाइफ के अंदर, उतारना कैसे। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने निकोलस टेस्ला का नाम सुना होगा। निकोलस टेस्ला वाज अ ग्रेट इन्वेंटर, और जो आज जो टेस्ला कार है उन्हीं के नाम पे है। निकोलस टेस्ला ने एक फॉर्मूला दिया है जो आप गूगल करके खुद ढूंढ सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं। आज की तारीख में गूगल के पास ज्यादा ज्ञान है किसी इंडिविजुअल से। वहां पे 369 का एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, और मैं समझता हूं आज पूरे इस लेक्चर की सबसे बड़ी टेकअवे आपकी ये होना चाहिए कि 369 का जो फॉर्मूला है उसमें आपको करना इतना ही है कि प्रतिदिन सुबह उठने के बाद 3 बार लिखना है, दोपहर को 6 बार लिखना है और रात को सोने से पहले 9 बार लिखना है। क्या लिखना है? आपको जो प्रॉपर्टी इसमें से चाहिए वो प्रॉपर्टी है। आप मान लीजिए आपको भय, आप लिखेंगे, आपको लिखना क्या? इट हैज टू बी assertive and affirmative sentence. I am fearless. I am fearless. I am fearless. Second, दोपहर में 3-6 बार लिखना। In 45 days time, you will see huge transformation in your life. So you can work on all these 26 aspects of life. Another important thing is you need not to do everything all 26. बड़ी अच्छी बात यह है कि इनमें से किसी एक गुण को आप पकड़ लेंगे तो 26 सब चलाएंगे। अच्छाइयों के साथ अच्छी बात यह है कि जब अच्छाई की चर्चा करते हैं, हम अच्छाई की बात करते हैं और अच्छाई को एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी मोमेंटम गेन कर लेती है, एक के बाद एक दूसरी अच्छाइयां चली आती है। सिमिलरली आसुरी विद्या के साथ भी यही है कि जब आप गलत बात करते हैं तो वो गलत बात भी मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई इंपैक्ट आता है। सो यू नीड टू चूज व्हाट एक्चुअली यू वांट टू बी, अकॉर्डिंगली यू हैव टू अडॉप्ट दैट, रास्ता वो चुनना पड़ेगा आपको। एक और बात है, ये बहुत सत्य, कटु सत्य संसार का, कोई स्कूल अपराध करना नहीं सिखाता, कोई स्कूल शराब पीना नहीं सिखाता, कोई स्कूल झूठ बोलना नहीं सिखाता, कोई स्कूल करप्ट होना नहीं सिखाता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सारी चीजें संसार के अंदर है। दुनिया का कोई स्कूल ये कोई चीज सिखाता नहीं।
इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जो भी बुरी आदतें हैं वो आपको समाज समय आने पर सिखा देगा। तो बेहतर यह है कि जहां तक स्कूल में है आप अच्छी बातें सीखने की कोशिश करें, बुरी बातें समाज आपको समय पर सिखाने वाला है, संसार आपको सिखाने वाला है, अपने चाहेंगे तो भी आपको सिखाने वाला है, उस रास्ते से गुजरेंगे आपको सब आने वाला है। तो बेहतर है कि हम यहाँ पे अपनी अच्छाइयों को बढ़ाने की लगातार कोशिश करते रहें। और इसके अंदर जब आप इसमें जो मैंने बोला ना वैल्यू माइग्रेशन है या रिग्रेशन है प्रोग्रेशन, जब आप रिग्रेसिव एटीट्यूड रखेंगे या बुरी रास्तों में जाने की कोशिश करेंगे तो वहां भी मोमेंटम गेन होता है, आप नीचे गिरना चालू हो जाते हैं। और प्रोग्रेसिव होगी तो वहां भी आप मोमेंटम गेन करेंगे और आगे के बढ़ना चालू कर देंगे। इसके अंदर भी जब आप डिवाइन एबिलिटीज को लेने की कोशिश करते हैं तो वहां भी एक डिस्ट्रक्शन होता है, बट दैट डिस्ट्रक्शन इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। आप में झूठ बोलने की आदत है, आपको झूठ बोलना बंद करना है, तो यू आर डिस्ट्रॉइंग योर एबिलिटी, योर हैबिट ऑफ लाइंग। आपको गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा कम करना है, तो यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय दैट गुस्सा एंड रिप्लेस विद ह्यूमिलिटी। सो दैट इज डिस्ट्रक्शन, बट दैट डिस्ट्रक्शन इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। So there are very type of destruction: destructive destruction, creative destruction, and creativity. All these things are there. मैं एक आखिरी बात मेरी तरफ से बताऊंगा, इसमें केवल एक चीज, केवल एक, आपको आसुरी प्रॉपर्टी से लेस कर देगी, मतलब आई मीन यू विल हैव लॉट ऑफ आसुरी प्रॉपर्टीज और यू हैव लॉट ऑफ डिवाइन प्रॉपर्टीज ओनली बाय सिलेक्टिंग वन वर्ड. विच इज दैट वर्ड? दैट वर्ड इज आई. ये बड़ा खतरनाक शब्द है आई. आई का मतलब होता है हिंदी में मैं, और थोड़ा संस्कृत में जाएंगे तो इसका मतलब होता अहम, और अहम का फिर अगर मतलब निकालेंगे संस्कृत में तो होता अभिमान. ये जो आई है ना, वो डेमोनिक प्रॉपर्टीज, यदि आपका ईगो बहुत बड़ा है तो यू विल बी फुल ऑफ डेमोनिक प्रॉपर्टीज. वॉट एवर यू आर अल्टीमेटली गोइंग टू बी फुल ऑफ डेमोनिक प्रॉपर्टीज इफ यू हैव योर आई, बिग आई, bigger than myself is bigger than anybody. And then 26 properties. The moment you start diluting your I, मेरे I को मैं जितना तिरोहित करता जाऊंगा, जितना बहाता जाऊंगा, उतना कम करता जाऊंगा, and when I start feeling that I am a small part of the whole universe. ये एक बड़ी मशीन है, जैसे एक बोइंग हवाई जहाज होता है ना, उसमें 10 लाख से ज्यादा पार्ट्स लगते हैं. वो 10 लाख पार्ट यदि अलग अलग करेंगे तो वो पार्ट कोई ही नहीं कह सकता कि वो हवाई जहाज है, लेकिन वो 10 लाख पार्ट जब मिल जाते हैं तो हवाई जहाज बन जाता है. वैसा ही हमारे साथ भी है कि ये यूनिवर्स के अंदर हम इंडिविजुअली कुछ भी नहीं है, लेकिन वी आर पार्ट ऑफ अ बिग डिवाइन स्कीम ऑफ थिंग्स. सो वी हैव दैट ह्यूमिलिटी एंड हम्बलनेस that our I or a period of time keeps getting diluted, you will automatically get all these 26 divine properties. तो मैंने आपको 26 से पहले कम करने के बाद एकदम एक शब्द पे लेके आ गया. आप केवल अपने अंदर बार बार उठने वाले आई को, आई डिड दिस, आई एम ग्रेट, आई एम सो मच लर्नेड, आई हैव सो मच ऑफ वेल्थ, एंड दिस आई, द मोमेंट यू कंट्रोल योर आई, द मोमेंट यू ऑब्जर्व योर आई, automatically you will have more and more divine properties. Next please. इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा आपसे. Now why should we read भगवत गीता? मैंने आपसे बोला है कि अगर मैं आप में एक आदत पैदा कर सकूं आज, तो शायद मेरी इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी. आप भगवत गीता का कोई भी एक वर्ष विथ इट्स लिटररी मीनिंग रोज पढ़ना शुरू कर दे. कहीं भी, कोई सा भी, जो समझ में आए उसको पढ़े. थोड़े दिन बाद आपको लगेगा कि आपका जो सवाल है उसी का आंसर उसमें से आ रहा है. एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज इट इज अ डिवाइन बुक विद लॉट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ये आपको खुद खींच लेगी. आप पढ़ना शुरू करेंगे, ये अपने आप खींच लेंगे. मैं भाग्यशाली हूं कि मेरी मदर ने 10 साल की उम्र में मुझे भगवत गीता हाथ में दी थी, और तब से आज तक मैं उसके से जुड़ा हुआ हूं. तो ये आप कहीं कहीं अडॉप्ट करने की कोशिश करें, अपनी लाइफ के अंदर लेके आएंगे. ये मेरी बड़ी उपलब्धि होगी यदि आप सब केवल एक वर्ष, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन चैप्टर, ओनली 1 or 2 verses daily. If you start reading, automatically you will start answering answers for all these things. So we must read Bhagavad Gita. Why I am repeating once again that it's not a religious book. हमारा एक ये जो कॉन्सेप्ट होता है या नोशन होता है कि ये धार्मिक पुस्तक है और हमें धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़ना है, और हम तो लिबरल हैं और हम सेक्युलर है, और ऑल दिस थिंग्स इज नॉनसेंस, बिकॉज दिस बुक इज नोवेयर अ रिलीजियस बुक. Nowhere it is mentioned that a Hindu है ये या मुसलमान है कुछ. It's talk about only and only about humanity.
What should be our relationship with Gita? Relationship with Gita depends on your own nature. It can be your friend, philosopher, guide or your mother. I consider it as my mother. So आप अपनी रिलेशनशिप खुद तय कर लें कि आपके साथ रिलेशनशिप कैसी होना चाहिए. Now what is the difference between believing and knowing? ये बड़ा महत्वपूर्ण है. Unfortunately दुनिया के अंदर मानने वाले लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि मानना सबसे ज्यादा आसान होता है और जानना सबसे ज्यादा कठिन होता है. For knowing you need to ask questions. For believing you simply have to surrender. I am not saying that you don't believe, because the journey starts from believing. You need to believe, then you need to ask. अगर आप बिलीव करने के बाद वहीं रुक गए तो परेशानी खड़ी हो जाएगी. Then you will be ritualistic, you will be part of lot of rituals, and it will be only, you will stop over there itself. Like हम लोग देखते हैं कई धर्म में ऐसा, जैनिज्म में जैसे फॉर एग्जाम्पल, lot of austerity and many things are prescribed by Lord Mahavir. But how many Jains are following that? Because we find comfort, हमें मानने में comfort आ जाता है. भगवान की मूर्ति बनाई, पूजा की, प्रार्थना की, बात खत्म हो गई. उसके बाद आप दुनिया के सारे गलत काम करो. तो ये बिलीविंग में यदि हम ज्यादा भरोसा करते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि बिलीफ हमारे रिचुअल का हिस्सा हो जाएगा. तो बिलीफ से आगे की जर्नी में हमें नोइंग में जाना चाहिए. Now next 3 slides are almost same. This is the journey chart. मैं ऊपर से शुरू करूंगा. Wisdom, finding in today's time, finding wisdom is like finding a needle in haystack. ये wisdom इतनी कम हो गई दुनिया में. Wisdom comes from knowledge. See, नीचे से चलेंगे आप. WhatsApp के इस जमाने में you have a lot of misinformation. You filter it, then you will have information. Then you further filter information and knowledge. And filtered knowledge is your wisdom. So, wisdom, in other words, is hijacked by knowledge. Knowledge is hijacked by information. And in today's time, information is hijacked by misinformation. Now, next, why I have taken this is, ये जो मैंने पहला चार्ट लिया है, इसके बारे में भगवत गीता भी बात करती है. You migrate from being tamoguni, rajoguni, satoguni and gunatit. That's the final awakening stage. Now, in the previous slide, we saw migration from tamogun to rajogun to Satogun and Satogun to salvation. Same thing is told by Maslow. Because Maslow was somebody outsider, we are very happy to read Maslow, we are very happy to give examples of Maslow, but the same thing has been taught in Bhagavad Gita 2500 years ago. ये चारों नाम मैंने खाली इसलिए लिए हैं कि आपका एक मिसकॉन्सेप्शन दूर होना जरूरी है. जब का मतलब ये नहीं है कि हम केवल माला फेरते रहे. मन का फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का बर का फेर. इसका मतलब यह है कि आप अगर माला फेर रहे हैं तो माला फेरने से कुछ होने वाला नहीं. इट बिकम्स रिचुअल. इट ऑफ कोर्स कंट्रोल्स योर माइंड. एक तरीके से एक सेनिटी आ जाती है माइंड में, आपका वॉन्डरिंग माइंड जो है वो बंद हो जाता है. लेकिन जो माला फेरने के फायदे नहीं है, आप अपने मन के फेरे. मतलब जो हम बात कर रहे हैं आसुरी संपदा से हमारे देवी संपदा में आने की, या वैल्यू माइग्रेशन करने की लाइफ में, या क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की जो बात कर रहे हैं, उसका मतलब वो जप आता है. जप में मैंने इसलिए 3 वर्ड लिए हैं, ग्रेटिट्यूड, पेनेंस एंड डिसिप्लिन. डजंट मीन दैट आप फास्टिंग करें, भूखे रहें, दिन भर एक पांव पे खड़े रहें, कठिन से कठिन तपस्या करें, वो इशू नहीं है. तप, हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस. तप का मतलब फास्टिंग वगैरह नहीं है. त्याग, सेक्रीफाइस. त्याग का मतलब घर छोड़ के जाना नहीं है, जंगल में जाके तपस्या करना नहीं है. सेक्रीफाइस. यू ऑल ऑफ इज सेक्रीफाइस्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम टू लिसन मी. So this is a sacrifice. Our teachers are coming to teach you. They are doing sacrifice. You are sacrificing some worldly pleasure to come to school and learn. So all of us are doing sacrifice. No, yajna and puja. They are performing rightful duties. All of us have assigned duties. आखिर में कल इतना ही कहना चाहूंगा कि भगवत गीता से आप जो सीख पाएंगे वो ये है, अवेयरनेस, लिविंग विद अवेयरनेस. राइट, रॉन्ग, 3 गुण की ये पूरी माया है. भगवान श्री कृष्ण खुद ने कहा है कि नथिंग इन द यूनिवर्स इज आउट ऑफ दिस 3 गुणास, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण. सो वॉट एवर इज हैपनिंग, यू कांट स्टॉप इट. द ओनली थिंग इज दैट यू कंटिन्यूसली माइग्रेट फ्रॉम लोअर levels to the higher levels and higher level of your consciousness, and be aware of your living. The point ये है कि awareness, living with full awareness
and performing your duties. With this, I'll stop my deliverance from my side and request all of you to ask me questions wherever you have. Thank you very much. Thank you. आप में से यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हाथ उठाएंगे. If Lord Krishna wanted peace, why did he force Arjun for the war? Very interesting question you asked, because भगवत गीता में ऐसा और जगह भी आया है कि अहिंसा अपने आप में बहुत बड़ा तप है. तो भगवान पीस चाहते थे तो उन्होंने अर्जुन को इस वार के लिए फोर्स क्यों किया. सेकंड चैप्टर में एक बड़ी अच्छी बात आती है, जब अर्जुन ने बहुत सारे सवाल उठाए, मुझे लड़ना नहीं है, ये वर्णशंकर संतान हो जाएगी, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये हमारे ही लोग हैं, इनको हम मार के क्या करेंगे. इन सब का आंसर देने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि ये तुम्हें असमय मोह क्यों प्राप्त हुआ. असमय, when you have entered into the field of war, this is not the right time to ask this question, number one. So there is a time for a question. आप वो सवाल कब पूछ रहे हो. ये वॉर के पहले अर्जुन ने सवाल पूछ लिया होता तो शायद भगवान कहते ठीक है कोई बात नहीं, यू गो टू हर्मिट्स, यू रिनाउंस योर लाइफ एंड गो देयर. सेकंड, धर्म क्या है अर्जुन का. हम में से देखिए भगवत गीता की बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वॉर के मैदान में बात हुई है. अर्जुन का लिमिटेड प्रश्न था, मैं लड़ूं या न लड़ूं, और ये सवाल केवल 2 अध्याय में समाप्त हो गया था. तीसरे या चौथे अध्याय के बाद भगवत गीता की कोई आवश्यकता नहीं थी. बट भगवत गीता कंटिन्यूड फॉर 18 चैप्टर, बिकॉज उसमें भगवान ने हर एक के लिए, हम में से हर एक के लिए एक ड्यूटी बताई है वो करने की. जैसे हम में से अधिकांश वैष्णव परिवार से हैं, व्यापार से आते हैं, सेवा से आते हैं. कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. उन्होंने आखिर में बताया कि हर आदमी को उसकी स्वाभाविक ड्यूटी करना चाहिए. व्हाट इज हिज स्वाभाविक, अर्जुन की स्वाभाविक ड्यूटी क्या है. अर्जुन वॉज ए वॉरियर. द राइटफुल ड्यूटी फॉर ए वॉरियर, pardon? The rightful duty for a warrior is to fight a rightful war. अगर एक सैनिक जो सीमा पे तैनात है, यदि वो बोलता है कि मेरे को अहिंसा प्रिय और मैं लड़ना नहीं चाहता हूं, तो ही इज नॉट, आई मीन, डूइंग जस्टिस टू ड्यूटी. सो हर एक की हमारी एक ड्यूटी है. वैष्णव की वाणिज्य, कृषि ग्रह वाणिज्यम वैश्क्रम स्वभावम, ब्राह्मण से मतलब जो ज्ञान देने वाली जो सोसाइटी है, स्कूल टीचर स्टूडेंट्स, उनकी क्या ड्यूटी है. जो व्यापार व्यवसाय करते हैं उनकी क्या ड्यूटी है. जो सेवा क्षेत्र में लगे उनकी क्या ड्यूटी है. जो क्षत्रिय है उनकी क्या ड्यूटी है. तो अर्जुन का धर्म क्षत्रिय था एंड ही वाज फाइटिंग अ राइटफुल वॉर. सो I think I have answered the question that if you are performing your duty, which are rightful duties, that is not hinsa. Next. Is Bhagavad Gita a holy book of Hindu religion? It is a holy book of humanity, entire human race. It is not a holy book of only Hindu religion. Interesting चीज ये है कि is Hinduism a religion? No, it is a way of life. It is not a religion first of all. जो भी सिंधु नदी के इधर रहता है उसको हम हिंदू बोलते हैं. सिंधु नदी एक जोग्राफिकल लोकेशन है, जो सिंधु नदी के इधर रहने वाले लोग हैं सब हिंदू माने जाते हैं. लेकिन जब 2500 साल पहले भगवत गीता लिखी गई थी या बोली गई थी, उस समय इसमें कोई जिक्र नहीं है हिंदू का. इट्स नॉट अ स्क्रिप्चर फॉर अ पर्टिकुलर religion. It's a scripture for the entire humanity. Sir, it's true that we are following Sanatan Dharma. Now, what is Sanatan Dharma? What is Sanatan first of all? What is Sanatan? Sanatan का मतलब होता है कंटिन्यूटी, जो परंपरा से चला आ रहा है, परंपरा पर तक चलता रहेगा. दैट इज कंटिन्यूटी. सनातन धर्म, the religion which started from the beginning and that will continue. और एक बात बताऊं आपको, सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता है, समय के साथ इवॉल्व होना. दुनिया का कोई धर्म इवॉल्व नहीं होता है. आते हैं धर्म है, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो धर्म होता है और फिर आगे निकल जाता है. थोड़ा सा मैं आपको एक बुक रेफर करूंगा, संस्कृति के 4 अध्याय. ये रामदास ऋषि दिनकर की पुस्तक है, इसे जरूर पढ़ना चाहिए. इसमें पूरी हिस्टोरिकल एविडेंसेस दिए गए हैं. तो ये जो सवाल है कि सनातन धर्म, देखिए वेदों के समय में, आज के 4000 साल 5000 साल पहले, जब ये पूरा समाज हमारा पुरोहितों के,
पंडितों के चक्कर में आ गया तो इस समाज में बहुत हिंसा होने लग गई, ह्यूज, पशु बलि, नर बलि और तरह तरह की हिंसाएं उस समय हो रही थी। तो जब ये एक किसी एक्सट्रीम पे जाते हैं तो इंडियन साइकिक जो है, जिसे बोलना चाहिए यदाई यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी किसी चीज की अति होती है तो कोई ना कोई कॉस्मिक एनर्जी इस धरती पे अवतार पुरुष के रूप में आती है और वहां पे एक बड़ा कोर्स करेक्शन करती है। और वो कोर्स करेक्शन हुआ गौतम बुद्ध और महावीर के साथ में कि जब हिंसक समाज हो गया तो दो नई विचारधारा आई, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सनातन धर्म। देन वी फर्दर मूव ऑन, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग लॉर्ड महावीर एंड बुद्ध, यंग जनरेशन स्टार्टेड टेकिंग मॉन्कहुड, वो सब साधु बनने लग गए। अगर यंग जनरेशन साधु बनने लग जाएगी तो संसार को चलाएगा कौन? देन लॉर्ड कृष्णा केम आउट विद भगवद गीता, नहीं, यू डू योर राइटफुल ड्यूटी। रिन्यूंसिएशन इन भगवद गीता डजंट मीन लिविंग एवरीथिंग असाइड एंड गोइंग टू हर्मिट्स। रिन्यूंसिएशन मीन भगवद गीता मीन्स परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज राइटफुली, सेल्फलेसली एंड विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी फ्रूट्स। तो ये जो बात है इसको हम भगवद गीता में कहा गया है, कर्म योग के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा कि आप अपनी ड्यूटीज को पूरा करें। इनर रिन्यूंसिएशन, व्हाट इज इनर रिन्यूंसिएशन? इनर रिन्यूंसिएशन इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी फ्रूट्स बिकॉज यू डोंट हैव एनी राइट ऑन फ्रूट्स। जिसमें भगवद गीता ने भगवान ने कहा है कि आपको अपने कर्म का करने का अधिकार है, कर्म के फल का अधिकार नहीं है। इसकी गहराई में जाएंगे तो ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर आधे घंटे बात की जा सकती है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हो उसमें हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, यू आर ओनली वन ऑफ देम। So all those variables will fall in line, whether you will be able to deliver or not. So don't worry about it. You just perform your duty and go ahead. So सनातन धर्म का सवाल था। मेरा कहने का मतलब ये है कि सनातन धर्म ऐसा है जो परपेचुइटी में, कंटिन्यूटी में इनफाइनाइट है, जो कंटिन्यूसली चलता रहता है। Any other question? Yes. नमस्ते सर। नमस्ते जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका, काफी उपयुक्त बातें आपसे सुनने को मिली। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, इसके लिए सबको धन्यवाद बहुत बहुत। जी हाँ सर, मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो आपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की बात की थी, तो हम कई बार ऐसे कहते हैं कि मुझे ऐसे इल्यूजन्स आते हैं, इल्यूजन्स की बातें हम लोग कई बार करते हैं कि मुझे पता चल जाता है पहले क्या होने वाला है। तो वो सबकॉन्शियस या कॉन्शियस, कौन से माइंड की बात होती है एग्जैक्टली? या सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, स्टोर हाउस है आपके सारे डेटा का। इसको बहुत, अगर मैं आत्मा परमात्मा के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को 1 मिनट में समझ में आ जाए, ऐसा मुझे दृष्टांत दे देना चाहिए, उदाहरण देना चाहिए, तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसको आप कंपेयर करें मोबाइल फोन से। मोबाइल फोन की एक बॉडी होती है, ये ह्यूमन बॉडी जैसा आपकी बॉडी मोबाइल का फोन है ना, जैसे वो बॉडी है। उसके अंदर एक सीम लगी होती है। ये सीम जो है ना, हमारे अंदर जो सीम है वो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारी अपनी सीम है। उसको हम बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर जो है ना, आपका डेटा बैंक है। ये आपके सारे डेटा को साथ में लेके चलता है। आपके जितने भी जन्म हुए हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन ने पूछा कि मैं कैसे मान लूं आप पहले हुए हो, आप तो बोल रहे हो मैं पहले हुआ हूं, जबकि हम तो दोनों साथ में खड़े हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, लेकिन तुझे याद नहीं है। इट मीन्स द सबकॉन्शियस माइंड हैज द स्टोर ऑफ ऑल डेटा ऑफ योर पास्ट लाइफ। दैट्स व्हाई हमको कई बार लगता है कि ये इतना दुष्ट आदमी पैसे वाला कैसे है, ये दुष्ट आदमी इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया है, ये हमें मालूम नहीं उसकी जर्नी क्या रही है। सो सबकॉन्शियस माइंड इज द स्टोर हाउस ऑफ ऑल डेटा। दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड कि व्हेन यू टॉक योरसेल्फ and invoke your self-conscious mind, that subconscious mind may have answers for many things because it knows everything. It knows your past, it knows your future, which the conscious mind doesn't know. And the third one is superconscious mind, that is universal mind. तो योगिक लोग इस बात को समझ पाए हैं कि जो दुनिया पूरी बाहर है वो हमारे अंदर है। ये हमारा विषय नहीं है यहाँ पे बात करने का, न मैं समझता हूँ इस बारे में, मैं खुद स्टूडेंट हूँ। बट पॉइंट ये है कि जो माइंड के डिफरेंट लेवल है, उसके अंदर कॉन्शियस माइंड सबसे ऊपर है, सबकॉन्शियस बीच में आता है। और ये अब इसके बाद तीसरी चीज आती है जो मोबाइल का मैंने एग्जांपल दिया, बॉडी, देन सीम, देन थर्ड, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दैट्स यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, दैट्स कॉस्मिक एनर्जी। क्या फोन आपका बिना बैटरी के काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। फोन की बॉडी है, फोन में सिम है, लेकिन बैटरी नहीं है। ये जो बैटरी है ये आत्मा है, और जो बैटरी है वो भी काम नहीं कर सकती है यदि उसके अंदर आपने चार्ज नहीं किया। तो चार्जिंग है, ये आत्मा है, एनर्जी। सो दिस एंटायर यूनिवर्स इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी। पूरा ये एनर्जी का ही बना हुआ है, जो कुछ है सब एनर्जी का है। सो ऑल दीज थिंग्स वर्क ओनली व्हेन देयर इज एनर्जी। इफ देयर इज नो एनर्जी, नथिंग वर्क्स।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। आपके प्रखर मुख से गीता ज्ञान गंगा से हम परिचित हुए और आपने बहुत सारी बातें बता दी। हम अपने उलझनों में हमेशा उलझे रहते हैं, कैसे निकलना है, गीता किस प्रकार हमारे जीवन में उपयोगी है, क्योंकि हमारे पास, हम सभी के पास समय इतना नहीं होता है, लेकिन आपने कहा है तो हम पढ़ना जरूर शुरू करेंगे। जरूर जरूर। उस हिसाब से आज आपने एक छोटे से समय में इतनी सारी ज्ञान की बातें दे दी, कैसे अज्ञानता से ज्ञान की ओर आना है, कैसे दैवीय गुणों का हम अपने अंदर में समावेश कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों से परिचित कराया है। आपका कोटि कोटि प्रणाम सर आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगा, आप स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे आप 16वां अध्याय अवश्य पढ़ें, और 16वें अध्याय में भी आगे जाए ना जाए पहले 3 वर्सेस अवश्य पढ़ें। उन 3 में से आप आइडेंटिफाई करें आपकी वीकनेस क्या है और उस वीकनेस को ठीक करने के लिए प्रयास करें। आखिरी स्लाइड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यथेच्छसि तथा कुरु। ये मैं हमेशा मेरे प्रोग्राम के बाद में बोलता हूँ, यथेच्छसि तथा कुरु। अध्याय 18वें के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा समझाने के बाद बोला कि जो मैंने बोला तुम्हें समझ में आ गया, अब तुम्हें जो इच्छा हो वो करो। He did not force into war. अभी जेंटलमैन ने पूछा था कि कृष्णा forced into war. No, कृष्णा never forced into war. कृष्णा ने कहा कि वॉर करने के ये लाभ आनी है और न करने के ये लाभ आनी है, करेगा तो ऐसा होगा, न करेगा तो ऐसा होगा। तो यथेच्छसि तथा कुरु, मेरा 1 घंटे का प्रोग्राम के अंदर मैंने मेरी तरफ से मुझे जितनी बुद्धि थी मैंने आपको बताया। What you want to do is it's all up to you. Thank you very much. Thank you. अच्छा, विद्यार्थियों से अनुरोध है और मैं कहना चाहूँगी, यदि गीता से संबंधित हम जितने भी सवाल पूछते हैं वह कम है, बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं। यदि आप लोगों को कोई सवाल है तो आप अपने सवाल लिखिए और हमारे पास दे दीजिए, बाद में आपको आपके सवालों का उत्तर अवश्य मिलेगा। और टीचर्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप ज़रूर अपना सवाल लिख कर दीजिए। Good afternoon, everyone. First, I would like to call upon our chairman, sir, to present the token of gratitude to our esteemed guest, Mr. Mantri. On behalf of the school management and all the students, I would like to extend my heartiest thanks to our honorable chief guest, Mr. K.G. Mantri, for his presence in the function. Thank you, sir, for enlightening us with your inspiring and motivating words. You are an exemplary person, and we have a lot to learn from you. He rightly called the Bhagavad Gita a song of the Lord. It is indeed an ocean of knowledge and wisdom. His knowledge of the sacred text is remarkable. His comparison of Arjuna and Hanuman in their personalities is very much relatable in the modern age, that is the Kali Yuga. He rightly called the Bhagavad Gita a religious text, science, art, and math. After his talk, I am sure we can all now agree that we can differ between believing and knowing.